प्रकृति हमारी मित्र है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। I repeat my thought. Nature is our friend and we should take care of it. प्रकृति हमारी मित्र है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। Thank you. Have a nice day. Some international news. The United Arab Emirates plan to shift 50% of government service to AI within 2 years. Sports news. In India Premier League 2026, Mumbai Indians versus Chennai Super Kings. So focus on Kera Hussain discipline to power play strategy. National news. Supreme Court asked West Bengal court officer to pressure apply on water dole exclusion. EMRS Mohu news. Our school is going to celebrate its annual function next week. Thank you. My name is Nandan Tagore from Kodavina. Today's word profound spelling PROFOUND meaning very deep or showing great understanding. जिसमें गहराई या गहरी समझ हो. Synonyms deep and insightful. Antonyms shallow and superficial. Example: he shared a profound view about life. I repeat my word profound. Spelling PROFOUND meaning very deep or showing great understanding. जिसमें गहराई या गहरी समझ हो. Synonyms deep and insightful. Antonyms shallow and superficial. Example: he shared a profound view about life. Thank you. Have a nice day. From Godavari. Today's quiz. First, the Dr. Bhimrao Ambedkar Yatra scheme has been launched by which state? Repeat karo question. I repeat my question. The Dr. Bhimrao Ambedkar Yatra scheme has been launched by which state? करंट अफेयर है बच्चों, ये कोई बात नहीं, पता नहीं होगा. Correct answer Puducherry. पुडुचेरी. Second, Hudson River is located in which country? हडसन. हडसन रिवर. Repeat करो. I repeat my question. Hudson River is located in which country? Anyone? Correct answer United States. Third, Operation Sagar Bandhu was launched by India to provide help to which country? दोबारा बोलो. I repeat my question. Operation Sagar Bandhu was launched by India to provide help to which country? Correct answer Sri Lanka. Fourth, who won the ICC Men's T20 World Cup? India. Correct answer India. Fifth, what do you call the force that pulls object towards the earth? Gravitation. Correct answer gravity. Thank you. Good morning everyone.
Respected Principal Ma'am, teachers and my dear friends, my name is Kushmita Bhaiya from Kolaburi House. Today we have gathered here to celebrate Earth Day, a very important occasion that reminds us of our duty towards our planet, our home, the Earth. Earth Day is observed every year on 22 April across the globe. It is a day dedicated to raising awareness about environmental issues such as pollution, deforestation, climate change and loss of biodiversity. More importantly, it is a day that inspires us to take action and make our earth a greener and healthier place to live. The theme of World Earth Day 2026 is our power or planet. Now, we will show a video. अर्थ डे के पीछे की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी थी कि कैसे एक छोटी सी फिक्र एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है राहुल और सीमा के गांव से। बस कल्पना कीजिए एक हरी भरी खूबसूरत जगह जहाँ की नदियां इतनी साफ हैं कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं, एकदम शांत सुकून भरी दुनिया। लेकिन क्या हो अगर एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगे? क्या हो अगर वो हरियाली, वो साफ पानी धीरे धीरे कहीं खोने लगे? और यहीं से हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, एक धरती एक समस्या। पता है राहुल और सीमा के गांव में जो हो रहा था ना, वो सिर्फ उनके गांव की कहानी नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया में जो हो रहा था उसकी एक छोटी सी झलक थी। सर 1960s और 70s के दौर में चलिए, दुनिया कुछ ऐसी ही दिख रही थी। हर तरफ फैक्ट्रियों का धुआं हवा को जहरीला बना रहा था, नदियों में बस कचरा ही कचरा था और हमारे जंगल वो तो बहुत तेजी से गायब हो रहे थे। मतलब हमारा प्लैनेट वाकई बड़े खतरे में था। और कहते हैं ना, जब मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती हैं तब कुछ बड़े आइडियाज भी जन्म ले रहे हैं। और इसी मुश्किल भरे दौर से निकला एक कमाल का आइडिया, और वो आइडिया था अर्थ डे। मतलब एक ऐसा खास दिन जब पूरी दुनिया एक साथ आए, अपने पर्यावरण के बारे में सोचे और उसे बचाने के लिए असल में कुछ करे। बहुत ही सिंपल पर सच में एक बहुत पावरफुल आइडिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए 1960 के दशक में जब पोल्यूशन बहुत बढ़ गया तो अमेरिका के एक सीनेटर गिलबर्ट नेल्सन ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा क्यों ना पर्यावरण के लिए एक नेशनल डे हो। उनकी ये कोशिश काम आई और 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में पहला अर्थ डे मनाया गया। और ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, इसी की वजह से अमेरिका में क्लीन एयर और क्लीन वाटर एक्ट जैसे जरूरी कानून बने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अमेरिका में शुरू हुआ एक दिन का इवेंट पूरी दुनिया का आंदोलन कैसे बन गया? इसी में तो है एक मूवमेंट की असली पावर। जरा इस नंबर की ताकत को समझिए। जो चीज अमेरिका में एक दिन के लिए शुरू हुई थी वो आज 190 से भी ज्यादा देशों में मनाई जाती है। हर साल 1 अरब मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक ही मकसद के लिए साथ आता है। और यही नंबर इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल मूवमेंट बनाते हैं। है ना कमाल की बात कि एक आइडिया इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। तो ये मूवमेंट इतना बड़ा तो है, और इसकी असली जान कहाँ बचती है? ये आती है हर इंसान के छोटे छोटे कदमों से। तो अब बात करते हैं हमारे छोटे से कदम की। चलिए वापस चलते हैं राहुल और सीमा के पास। याद है ना, अर्थ डे के बारे में जानने के बाद वो भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने फैसला किया कि वो भी कुछ करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की, बस अपने स्कूल में एक पेड़ लगाओ कैंपेन शुरू कर दिया। एक छोटा सा और बहुत जरूरी कदम। और असल में यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो कोई भी उठा सकता है। अपनी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ये बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, पर जब सब मिलकर करते हैं ना तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो ये सारी कहानी हमें कहाँ लेकर आती है? ये हमें लेकर आती है एक वादे तक, एक वादा जो हमारा अपनी धरती से है। और राहुल और सीमा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब उन्होंने शुरुआत की तो वो अकेले थे, पर देखते ही देखते पूरा गांव उनके साथ आ गया और सबने मिलकर अपनी दुनिया को, अपने घर को फिर से हरा भरा और खूबसूरत बना दिया। ये है एक साथ मिलकर काम करने की ताकत। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है, एक वादा है, धरती बचाओ भविष्य बचाओ। क्योंकि आखिर में ये हमारा इकलौता घर है और इसकी देखभाल करना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है।